Okay, dear students, welcome to all of you in the mechatronics class of MITRC Alwar. Today we are going to discuss about the state space. First, I want to tell you that state space is used for the multi-variable system. If there are only single variable system, as we have studied in the linear time invariant system, if is in any system there is only one input and one output, then it is easy to handle that system, because there will be only one equation or there can be two equations in the system. यदि किसी सिस्टम में एक दो तीन इक्वेशन है उसको हैंडल करना आसान है, बट इफ देर आर द number of multiple variable in the system, then definitely it is not easy to control that system with the simple equations or simple mathematical model. Because if there are number of more variables, suppose like we can say there are equations which have the x, y, z or several other variables like x1, x2 or multiple variables, then if we calculate, if we define the system, if we analyze the system, then it will be typical. So to analyze such type of system, state space analysis is used. Basically, the state space of a dynamical system is the set of all possible state of the system. Each coordinate is a state variable, and the values of all state variable completely describe the state of the system. तो स्टेट स्पेस जो एनालिसिस है डायनेमिकल सिस्टम का, इस सेट ऑफ द ऑल पॉसिबल स्टेट ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम की सारी पॉसिबल स्टेट को डिफाइन करता है स्टेट स्पेस एनालिसिस. Now we can take the some definition like the what is the state, what is the state variable, and what is the state vector. There are some basic definition. So state, it is a group of variable which summarize the history of the system in order to predict the future values or output. So state is a define all the past, present, and future conditions of a system. We can say state define all the past, present, and future conditions of the system. By analyzing the past states, we can predict the future value. State variables, the number of the state variable required is equal to the number of the storage element, number of the component. Like in any system, current flowing through inductor can be the state variable, voltage across capacitor can be the state variable. So there can be several type of the state variables in a system. And state vector, it is a vector which contain the state variable as element. In a single vector we can have the several state variables. एक वेक्टर के अंदर हमारे पास बहुत सारे स्टेट वेरिएबल्स हो सकते हैं. So that make the our system handling much easier. Now what is the state space model? The state space model can be described by the two equations. It can be described. First is the equation like x dash is equal to ax plus bu. For a linear time invariant system in a state space model, first equation is the x dash is equal to ax plus bu, and the second equation is the y is equal to cx plus du. Now the state model, the first and second equations are known as the state equations and output equations respectively. The first equation is known as the state equation. हम इसको बोलते हैं जो state model जो हमारा होता है उसमें दो equations होती हैं. First is the state equation and second one is the output equation, and combinedly these are called the state model of the system, that is the output equation. Equation first and second combinedly called the state model of the system. So where what are the x and x dash are the state
वेक्टर, यहाँ पर एक्स है हमारा स्टेट वेक्टर है और उसका डिफरेंशियल स्टेट वेक्टर है, दैट इज डिफाइंड बाय द एक्स डैश है, वो हमारा डिफरेंशियल स्टेट वेक्टर को डिफाइन यहाँ पर हमारा कर रहा है। u एंड y आर द इनपुट वेक्टर, u है वो हमारा इनपुट वेक्टर है, y इज द आउटपुट वेक्टर है। a b c d आर द मैट्रिक्सेस हियर, यू कैन इन जनरल अंडरस्टैंड दैट a b c d जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है दैट आर द मैट्रिक्सेस। Now I can take the one example like the suppose we have the x dash is equal to, there are some state variables like the x equations like the x dash is equal to, we have the 2x1 plus 3x2 plus 4x3 plus 2u, that is a one equation. Second we have the x2 is equal to x1 plus 2x2 plus 3u. In third equation we have the x3 dash is equal to 5x1 plus 6x2 plus 2u. These are the equations, state equations. And suppose we have another equation like y is equal to, y1 is equal to 2x1 plus 3x2 plus 1u, and y2 is equal to 5x1 plus 2x2 plus 2u. नाउ अवर स्टेट मॉडल, अब जो हमारा स्टेट मॉडल होगा सिस्टम का दैट विल बी x1 x2 x3. वी कैन राइट द इनपुट इक्वेशन x1 x2 x3 dash, x1 dash x2 dash x3 dash, that will be is equal to matrix. Here we will write the x1 x2 x3, these are the variables present in the system. क्योंकि जो हमने इसका मॉडल लिखा है दैट इज द x डैश, उसकी जगह पर हमारे पास x1 डैश x2 डैश x3 डैश आ गया। देन फर्स्ट इक्वेशन में व्हाट इज द कोफिशिएंट 2 2 3 4, these are the coefficient like the 2 3 4 is the coefficient, 1 2, x1 का कोफिशिएंट हमारा पास क्या है 1 है, देन x2 का 2 है, x3 का कोफिशिएंट 0 है। थर्ड इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट हमारे पास 5 है, x2 का कोफिशिएंट 6 है, दैट इज द 0 प्लस वी कैन राइट द u के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज द कोफिशिएंट इज 2, सेकंड इक्वेशन में 3, थर्ड इक्वेशन में दैट इज द 2, दैट इज द स्टेट इक्वेशन। ये हमारी एक स्टेट इक्वेशन हो गई जिससे हमने सिस्टम को डिफाइन कर दिया। अब अगर हमको आउटपुट इक्वेशन लिखना है तो वी कैन राइट द, हमारे पास दो वेरिएबल हैं लाइक y1 और y2, देन वी कैन राइट द आउटपुट इक्वेशन विल बी, इसी तरह से हमारे पास जो दो मैट्रिक्स हो जाएंगे यहाँ पर वी विल राइट द x1 x2 यहाँ पर हम लिख देंगे, और ये जो y की इक्वेशन है इनके वेरिएबल्स हैं 2 3, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, और 0 x3 इक्वल टू 0 5 2 0 प्लस जो हमारे पास u होगा, u का एक मैट्रिक्स आ जाएगा दैट विल बी द 1 and 2। नाउ इट इज द मैट्रिक्स A। अगर आप जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करते हैं तो x डैश ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी जिसको हमने स्टेट इक्वेशन बोला था, दैट इज द सेकंड इक्वेशन है, दैट इज द आउटपुट इक्वेशन। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा था, x डैश इज इक्वल टू, वी हैव रिटन x डैश इज इक्वल टू ax प्लस bu, दैट वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में लिखा था y इज इक्वल टू cx प्लस du। तो यहाँ पर जो हमारा a है
दैट इज द ए मैट्रिक्स होगा, वो हमारा ये ए मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा है। एक्स डैश की जगह पर हमने ये लिख दिया, एक्स डैश इज ए वेक्टर, x1 x2 3 x वेक्टर, b इज दैट एंड u इज दिस, हियर y इज दिस, सी मैट्रिक्स इज दिस, x की जगह पर हमने x1 x2, d की जगह पर ये, u की जगह पर इसको लिख दिया। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल। नाउ अगर हमको स्टेट स्पेस मॉडल से हमको ट्रांसफर फंक्शन किसी सिस्टम का ऑब्टेन करना है, तो वी कैन ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन विद द हेल्प ऑफ द स्टेट स्पेस मॉडल से हम ट्रांसफर फंक्शन को अचीव कर सकते हैं। दैट कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन, ये हमारा स्टेट मॉडल दिया हुआ है, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज द इक्वेशन सेकेंड। नाउ टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन वन। तो हमने एक्स डैश का जो हमारा लाप्लास होता है, दैट इज द डिफरेंशियल टर्म का जो लाप्लास होता है, उसको हम एस एक्सेस, इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने इसको एस एक्सेस लिख दिया। इसी तरह से ए का ए और एक्स का जो एक्सेस होगा, हमारा डिफरेंशियल जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, बी को बी लिख दिया, यू को हमने यूएस लिख दिया। तो ये तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। इसी तरह से जो हमारा इक्वेशन सेकंड होगा, y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, इसी को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सेस को कॉमन ले लिया, एस को अकेला नहीं लिखते, इसके साथ हमने आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर वही होगा जो ए का ऑर्डर है, ए मैट्रिक्स का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं कैसे लिखते हैं, आई इक्वल टू जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसके केवल डायगोनल पर 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। तो दैट इज द एस आई माइनस ए इक्वल टू बी यू एस, एक्सेस हमने कॉमन ले लिया, तो एस आई माइनस ए का इनवर्स बी यू एस। और जो हमने सेकंड इक्वेशन था उसका अगर हम लाप्लास लेते हैं y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू का, तो हमारा जो लाप्लास आएगा वाई एस इक्वल टू सी एक्स एस प्लस डी यू एस। इक्वेशन फर्स्ट इस थर्ड से हमने एक्सेस की वैल्यू इस फोर्थ इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं, तो हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा दैट विल बी ट्रांसफर फंक्शन वाई एस इक्वल टू दिस, और वाई एस इक्वल टू यू एस कॉमन ले लिया, टी एस ट्रांसफर फंक्शन बराबर वाई एस अपॉन यू एस बराबर सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी। तो दैट फॉर्मूला डायरेक्टली कैन बी यूज if the state equations are given, state model is given, then we can calculate the transfer function from this state model. तो ट्रांसफर फंक्शन का जो हमारे पास फॉर्मूला आया, that is the C is the matrix S I minus A, S I minus A, that is the inverse term B plus D, that is the state मॉडल ऑफ द सिस्टम। ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन का स्टेट मॉडल जो था उससे हमने ट्रांसफर